أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. میں سلما بٹ صاحبہ کو پوچھا والا چیمبر شام کے لیتا ہوں. سر نوید حیدر شیرازی صاحب, کمشنر صاحب, نوید احمد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو, ہمارے بس باقی بھی ہمارے ایم پی صاحب ہیں, اور ڈاکٹر صاحب, ان سب کو شامل کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کا کام ہم ویسے بھی فیس بک پہ اسی جگہ پہ دیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. پریزیڈنٹ کو ملے سی ایم صاحب کا ویژن ہے کہ عام آدمی جتنے بھی ریٹس پہ ہم بھی اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. میم یہ اویئرنیس جو پروگرام ہے, اس سے بڑے بڑے لوگوں میں تو شوق آ گا, لیکن ساتھ میں لوکل ایڈمنسٹریشن کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی بڑا ہیلپ فل رہے گا. امید ہے کہ اس طرح کی انیشیٹو لیتے رہیں گے تو لوگوں میں اویئرنیس بھی آئے گی. سم پلیس اویئرنیس ہوئے گی کہ ایک حد تک آپ نے فیسلٹی کرنی ہے, لوگوں تک چیزیں اچھے معیاری ریٹ پہ پہنچانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف تھنگس کا بھی خیال رکھیں. میم آپ کی اس انیشیٹو کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہوپ فلی اس کا لوگوں تک امپیکٹ بھی جائے گا. میم میں پوجا والا چیمبر آف کامرس کی ڈاکومنٹ بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. الحمدللہ 4th چیمبر ہے, 6000 سے زیادہ ہمارے پاس ایسے ہیں. 34 کلسٹر گجرا والا ہولڈ کرتا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس وجہ سے گجرا والا الحمدللہ پاکستان کا تیسرا بڑا چیمبر ہے. جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان. منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین, پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گجرانوالہ, جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے. گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی, لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے. گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے. گجرانوالہ میں 8000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے. مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے. ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے میرا گجرانوالہ کا نعرہ بلند کیا ہے, جس کی کاوشوں کے مرہون منت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے, اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے. صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے. پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق
गुजरावाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रीफैक्ट्री ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, spare parts of hydro and thermo power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया के 2 मुमालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेडा, SCCP, वीबॉक, ईमेल, ई बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलावा अजीम गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिफाही कारहाय नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरावाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरावाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़े क़ल्ब के लिए सिद्दीक़ सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राई ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशां है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेस की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, 1122 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमे पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए
गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के कयाम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरावाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ जरूरत के मद्देनजर बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे आम इदारे हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरावाला के सनती पोटेंशियल और गुजरावाला में अवाम और सनतों को गैर मुयस्सर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने के जानिब अहम संग मील साबित हो रहे हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हमा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। सर नवीद शिराजी साहब, कमिश्नर गुजरावाला डिवीज़न, सदर चैम्बर, DC साहब, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, हमारी अंजुमन ताजरान, पीस कमेटी के मेंबरान, असातिज़ा कराम और हमारे तलबा भी यहाँ मौजूद हैं। आप सबको मैं डायरेक्टरेट जनरल कंज्यूमर प्रोटेक्शन पंजाब की जानिब से इस अहम और पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे डायरेक्टर जनरल फ्लाइट लेफ्टिनेंट इमरान कुरैशी साहब की तरफ से आप सबकी यहाँ पर मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इस एहसास के लिए कि कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस के लिए हम सब ने मिल के काम करना है और ये उस सफ़र में एक पहला कदम है जो हम सब की मौजूदगी से यहाँ ज़ाहिर हो रहा है। मैं ख़ास तौर पर मैडम सलमा बट साहिबा की आज तशरीफ़ आवरी की शुक्रगुज़ार हूँ। मैडम साहिबा, आपकी मौजूदगी जो विज़न मैडम CM का है उसमें एक रिफ्लेक्शन है कि हमने कंज्यूमर्स के लिए एक अवेयरनेस और मजबूत एक निज़ाम कायम करना है। इसी तरह मैं चैम्बर और तमाम अरकान चैम्बर की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म अदा किया और ये अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं आपके तावन का। अब मैं मैडम सलमा बट से रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर से कि वो हम सब से खिताब करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पीछे कुछ स्कूल की बच्चियाँ खड़ी हैं, स्टूडेंट्स, अगर काइंडली वो बच्चियाँ आगे आ जाएँ, कितनी बच्चियाँ और उनको कोई बैठने की जगह काइंडली अगर दे दें। जी, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं तहे दिल से आपका ख़ुसूसन गुजरावाला के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे हम मौजूद हैं, लेकिन आपके साथ मिलना और आपके साथ इंटरेक्ट करना और आपकी मौजूदगी का यहाँ पर होना मेरे लिए एक दोहरा एहसास है। उसकी बुनियादी वजह ये कि मेरा ताल्लुक़ गुजरावाला से और मैं खुद गुजरावाला की रावाली की बेटी हूँ और यहाँ पर हर बार वापस आना, यहाँ पे आके लोगों से मिलना, बात करना, आपसे इंटरेक्ट करना मेरे लिए एक दोहरा एहसास है और मैं इसको बिल्कुल तस्लीम करना चाहती हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं वापस कहीं बहुत ही अपनी जगह पर आई हूँ और यहाँ पर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेरी बहुत पुरानी वाबस्तगी और यादें हैं और यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल एक जो कि जिसे कहते हैं ना नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई है आपकी डॉक्यूमेंट्री देखकर।
गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी क्योंकि मुझे 2-3 हवाले से बात करनी है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मैं पहली मरतबा आई तो ये 2004 की बात है। मैं तब खुद एक स्टूडेंट थी, बिल्कुल अभी पढ़ के फारिग हुई और मुझे काम करने का बहुत जज्बा था, शौक़ था, लगन थी। उस वक्त गुजरांवाला में लड़कियों का काम करना कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। एक हमेशा से माली लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत तगड़ा शहर समझा जाता है। तब भी ये पंजाब के 4 बड़े चेंबर्स में आता था ये वाला चेंबर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे नंबर पे खड़ा है। फिर यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आपने देखा भी यहाँ पर तकरीबन ये हमारी जो अंदरून मुल्क की जो ज़रूरत है, होम अप्लाइंसेस हों, तब GFC फैन भी होते थे, सुपर एशिया की मशीन्स होती थी, एयर कूलर होते थे जो घरों में लाना पसंद करते थे लोग, वॉशिंग मशीन्स होती थी हमारी यहाँ की गुजरांवाला की, सोनिक्स इंडस्ट्री होती थी, सैनिटरी फिटिंग्स होती थी, मैग्नो होती थी, फैसल, बहुत सारे ऐसे नाम, ये वो सब नाम में इसलिए ले रही हूँ कि ये सब नाम हमारी वजह से आप कह सकते हैं बचपन की मेमोरी, जिसको हमने घूमते फिरते या जिसके साथ हम बड़े हुए। और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री, सिरेमिक्स की बहुत होती थी यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, फिर ऑटोमोबाइल्स होती थी, फिर गोल्डन पंप्स होते थे जो हम बहुत ज़्यादा जिनको देखा करते थे और जिनसे बड़ी आशनाई थी इन बिल बोर्ड्स के साथ। PVC के पाइप होते थे जो जिनके बिल बोर्ड्स लगे होते थे। मैं ये वो चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करी जो एक विजुअल इमेजेस दैट आई ऑलवेज कैरी विद माई सेल्फ जब भी गुजरांवाला का जिक्र आता है। तो इस लिहाज से हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो बहुत बड़ी यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे जो रूरल आबादी है इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, देहात बहुत ज़्यादा इस ज़िले के साथ जुड़े हैं। उन देहातों में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, ऑल्दो वो उस तरह से पनप ना सकी, कंटिन्यू ना कर सकी, लेकिन उसका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था इस खिते की, इस मुल्क की और इस सूबे की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। यहाँ पे कारपेट वीविंग होती थी घरों के अंदर, और फिर यहाँ पर दरिया बहुत ज़्यादा बुनी जाती थी। गखड़ उस तरफ चले जाएँ, कटलरी जिसका भी हमने जिक्र देखा, और घरों के अंदर इंडस्ट्री लगी होती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्लांट्स होते थे घरों में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर जो मेलामाइन का जिक्र हुआ तो मेरे अपने वालिद का कारोबार था। 70 की दहाई में मेलामाइन, 7 स्टार मेलामाइन के नाम से यहाँ पे काफ़ी बड़ी पंजाब की इंडस्ट्री थी जो लगाई। फिर उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, और ये कहने की बात ये कि पैसा बहुत था लोगों के पास, इंडस्ट्री बहुत रही हमेशा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमेशा इसको सोशली बैकवर्ड और कंजर्वेटिव इलाका समझा जाता था। और यहाँ पे ख़वातीन का आगे आना, काम करना, फिर प्रोफेशनल लाइफ करियर बनाना, तालीम में बहुत आगे चले जाना, ये सब हुनर सीखना, इसकी कोई इतनी पजीराई नहीं थी। और जब मैं 2004 की बात करी तो तब काफ़ी मुश्किल था ख़वातीन का बाहर निकलना, लेकिन बालादर इससे मुझे मौका मिला, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास सपोर्ट थी, मेरे वालिद मेरी सपोर्ट थे, सबसे बड़ी सपोर्ट जो थी। मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद की जो सपोर्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ बैठी कुछ बच्चियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे वालिद बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अगर अपनी बच्चियों की, आप उनको पर लगाएं ना, लेकिन जो कुदरत ने उनको पर दिए, अगर उनके पर काटने छोड़ दें हम, सिर्फ उनको अपने पर जो है इस्तेमाल करने का जो हक कुदरत ने उनको दिया वो दिया जाए, तो आप बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बेटियां भी आपके ज़िले का, आपके इलाके का, आपकी ज़िंदगी का, आपके माशरे का फ़ख्र बन सकती हैं, और वो फ़ख्र बन के अपनी जगहों पर लौट सकती हैं। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ये बात मैं हमेशा खुद कहना चाहती हूँ, और मुझे फ़ख्र होता है ये बात करते हुए कि मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं कोई जागीरदाराना निज़ाम से आई या कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रियल एम्पायर थी जहाँ जिसका मैं हिस्सा थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सिर्फ ये था कि मेरे वालिद ने मेरे पर नहीं काटे और उनको परवान चढ़ने दिया। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मेरे वालिदैन दोनों का इंतकाल हो गया, और उसके बावजूद, लेकिन वो जो अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी वालदा का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो मेरे वालिद ने सिर्फ यहाँ पर एक बेटी होने की हैसियत से मुझे तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। मौक़े जहाँ जहाँ मुझे जब मिले उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। और मैं ये आपके गुजरांवाला पे बैठे हुए तमाम वालिदैन के सामने, वालिद जो हैं इनके सामने ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ 19 साल उम्र थी और मैं राहवाली में रहती थी जब मुझे पहली मरतबा मुल्क से बाहर जाने का चांस मिला। एक पीस कोर्स था रोमानिया में, यूरोप में, मैं जिसके अंदर सिलेक्ट हुई, मैंने फॉर्म्स भेजे, मैंने एफर्ट किया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला।
And I told my father that I've won this scholarship and I've won this opportunity. And he sent me at the age of 19 from Pravdani. ये वो बुनियाद थी, ये वो चीज़ें थी, ये वो फैसले थे, ये वो स्टेप्स थे जो प्रॉब्ली आज यहाँ पर मैं आपके साथ सामने कैबिनेट मेंबर के तरह से आकर बैठी हूँ और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका सियासी सफ़र क्या था, आप कैसे आई, और ये इतना आसान नहीं होता सियासत में आना, उसमें आकर कैबिनेट में जाना, स्टे करना, सस्टेन करना, आगे बढ़ना, लेकिन ये सब मुमकिन है और गुजरांवाला और रावली से भी मुमकिन है। मेरा सिर्फ आपको से बात करने का, आपसे एक ताल्लुक, एक जो हमारा लिंक है जहाँ पे कनेक्शन डेवलप करने का, ये वो नुकता था कि मैं आपकी अपनी बेटी और बहन हूँ जो आपके पास आई है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चेंबर ऑफ कॉमर्स 2004 में जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर तब यही बिल्कुल ऐसा माहौल था कि ख़वातीन और लड़कियों को वेलकम नहीं किया जाता था। मैं तब भी आती थी, बार बार आती थी, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस होते थे, हम ट्रेनिंग करते थे, नेटवर्किंग करने की कोशिश करते थे। और 2005 या 6 की बात है कि एक यहाँ पे रिसर्च स्टडी की थी मैंने चैम्बर के साथ मिलकर, और यहाँ की जो इंडस्ट्री थी लोकल, उसके अंदर हमने देखा था कि 100 इंडस्ट्री को मैंने खुद विजिट किया था, डेटा कलेक्ट किया था, जहाँ मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ आपके साथ। और वो हमने किया था कि उस रिसर्च का बुनियादी मकसद ये था कि उसका जेंडर पर्सपेक्टिव था कि ख़वातीन के लिए और यंग लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के कौन से मौके यहाँ पर हैं, उन्हें किस तरह नौजवानों के साथ जोड़ा जा सकता है और बच्चियों के साथ जोड़ा जा सकता है। और 100 इंडस्ट्री जिसके अंदर मेनली हमारी ये वाली इंडस्ट्री जो चेंबर है, इसकी से वाबस्ता फिर टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को, आज भी मुझे याद है कि हमने जब उस पर सर्वे किया, डाटा कलेक्ट किया, डिटेल इंटरव्यूज़ किए, बिजनेस कम्युनिटी के एम्प्लॉयर के भी किए और एम्प्लॉय के भी किए, और जिसमें तकरीबन आई थिंक मोर देन 70% जो एम्प्लॉयर था, ये 2004 में भी उसकी राय थी कि जो ख़वातीन होती हैं जो वो उनकी इंटरपर्सनल स्किल कहीं बेहतर होती है, वो पब्लिक डीलिंग की जगह पे ख़वातीन को नौकरी देना प्रेफर करती हैं कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, रिसेप्शन के तौर पर, जहाँ पे आपके फ़ोन कॉल्स अटेंड करनी है, जहाँ जहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, जहाँ जहाँ पर आपको रेजिलियंस चाहिए, जहाँ जहाँ आपको काम चाहिए, काम में दूसरा अंग्रेज़ी वाला काम कह रही हूँ, पुरसकून रहने वाला, जहाँ जहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, जहाँ जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन चाहिए, वहाँ पे ख़वातीन को तरजीह दी जाती है। और ये सारे ऑल्दो बैक ड्रॉप के काम थे और पीछे रहकर बहुत सी इंडस्ट्रीज तब प्रेफर करना शुरू हो गई थी कि इन जगहों पर ख़वातीन को लेकर आया जाए। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में गए साथ ही तो हमें मालूम पड़ा कि हमारी जो बहुत सारी इलिटरेट पॉपुलेशन है उसके अंदर भी बहुत सारी जो ख़वातीन है वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारे यहाँ इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है। आज भी तकरीबन 67% हमारी जो इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, और उस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं, जो घरों में बैठ के काम करती हैं। अभी आपने बहुत यहाँ पे फुटबॉल सीती थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म सीती थी, कराटे के कपड़े सीती थी, जो मुझे ये वो चीज़ें जो याद है मुझे, ज़ुबानी सिलाई कढ़ाई के काम करके पैकिंग बहुत ज़्यादा करती थी घर में, छोटे जो टॉयज़ बनाना, ये वाले काम बहुत करती हैं, आज भी करती हैं। और फिर ऐसी बहुत सारी हमारी रोज़मर्रा की टोपियाँ सीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बटन बनाने, बहुत सारे छोटे छोटे काम जो घरों के अंदर बैठ के ख़वातीन काम कर रही होती है। और उनकी जहाँ पे एक तरफ ख़वातीन 67% इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा ख़वातीन है और घर में बैठ के काम कर रही हैं, उधर क्या होता था कि उनके वेजेस जो होते हैं वो मर्दों से आधे भी नहीं होते, उनके ऊपर वेजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेसाल हो रहा था, उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। तो तब वो हमने उस स्टडी के अंदर ये चीज़ रिकमेंड की थी कि ख़वातीन की जो आमदन है, उनके जो डेली वेजेस हैं, वो उतने ही होने चाहिए जितने कि किसी भी मर्द को दिए जाते हैं, क्योंकि काम तो वो भी उतना ही कर रही होती है, साथ में बच्चे भी संभाल रही होती है, घर को भी देख रही होती है, खाना भी बना रही होती है, और साथ में ये इकोनॉमी का पार्ट भी होती है। फिर उसके अलावा जो इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे यहाँ पर, उनको हमने ये कहा कि यहाँ पर वो छोटे छोटे जो ख़वातीन आती हैं, चाहे वो गरीब घरों से आती हैं, वो लेबर फोर्स होती है उनके लिए डे केयर सेंटर हो, उनके को मेडिकल कराने की सहूलत हर 6 महीने के बाद उनका मेडिकल करा दें, या उनको दवाई लेने के लिए कोई फ्री सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स बना के दे दिए जाएँ, इंडस्ट्री खुद इसको अफोर्ड कर ले अपने तय। इस तरह की हमने बहुत सारी कोशिश की कि ख़वातीन के लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बनाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जा सकें। तो यहाँ से ये कोई मेरी मेमोरी थी चेंबर के साथ, जो तब 2004-05 के टाइम पे हमने काम किया, और एक बहुत पे चेंबर ने उसको सराहा भी। बहुत सी यहाँ पर इंडस्ट्री में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर भी कुछ लोगों ने इनिशिएट किए।
देयर वाज अ गुड पार्ट. लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पर खवातीन का काम करने का रुझान इतना उसको पसीराई नहीं थी. लेकिन अब दैट टाइम इज़ गॉन नाउ. अब हम ये जहाँ पर गुजरांवाला, फिर मुझे याद है जब मैंने बाहर के मुल्क यूनिवर्सिटी के लिए मैं अपने फॉर्म भरती थी, बाहर के ममालिक में पढ़ने जाने के लिए अपने फॉर्म भरती थी, तो उसमें मैं एक जुमला ज़रूर लिखती थी कि आई बिलोंग टू गुजरांवाला विच इज़ वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ माई कंट्री बट सोशली अनडेवलप्ड. ये जुमला मैं ज़रूर लिखना पड़ता था, बिकॉज वो पूछते थे कि उसका सोशल प्रोफाइल क्या है, इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, कल्चरल प्रोफाइल क्या है. तो जब भी मैं सोशल प्रोफाइल लिखती थी तो मुझे लिखना पड़ता था कन्वेंशनल एंड अनडेवलप्ड, जिससे मुझे थोड़ा तकलीफ भी होता था, दुख होता था कि कभी हम इसको भी, जैसे ये चेंबर तीसरे नंबर पे है. आई रियली विश एंड आई प्रे एंड आज मैं चाहूँगी कि यहाँ बैठे हुए आप सब लोग हैं, इसी तरह हमारी सोशल डेवलपमेंट और हमारे जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर दी कैटलिस्ट टू गेट दिस डन, कि इसको सोशली इतना ट्रांसफॉर्म किया जाए. ये अदरवाइज भी सोशल ग्रोथ के अंदर, माइंडसेट ग्रोथ के अंदर, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के अंदर भी काश के सूबे का तीसरा और इस मुल्क का पहला शहर बने, पहला डिस्ट्रिक्ट. और ये सब पॉसिबल है और आप इसको कर सकते हैं. चैम्बर की तरफ मैं आऊँगी कि चैम्बर का किरदार क्या है, आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब का विजन क्या है, और उसकी रोशनी में आज हम आपके साथ यहाँ पर नशिस्त कर रहे हैं. चैम्बर आने का जो हमारा बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि चैम्बर हमारा ये ख्याल है कि हमें इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन हम 1 साल पहले जब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट जो है बुनियाद डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका बुनियादी तौर पे नाम सुन के मतलब ये समझा जाता है कि प्राइस को कंट्रोल करना है, वो इसका एक कंपोनेंट है. लेकिन उसके अलावा हमारी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका बुनियादी तौर पे सप्लाई चेन को मैनेज करना, डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करना, और जब तलब और असद हम पूरी करेंगे तो हम अपनी प्राइसेस को सस्टेनेबल बना सकते हैं, मॉडल के अंदर लेकर जा सकते हैं. तो उसका बुनियादी मकसद तो ओवरऑल डिपार्टमेंट का ये था. फिर इसके फर्दर बहुत सारे विंग हैं, जिसमें फूड डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी है जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम करती है, लाइसेंसिंग का काम करती है, फूड हाइजीन के ऊपर जिसकी तवज्जो होती है, जिसका डोमेन है. फिर इसके साथ इसमें हमारे मॉडल बाज़ार्स हैं. फिर इसके अंदर हमारा जो पामरा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडियाँ और गला मंडियाँ भी. प्रेसिडेंट साहब ने फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के हवाले से मुझसे एक सवाल भी किया, मैं उस पर भी बात करूँगी. और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं. लेकिन एक हमारे पास है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो चीज़ है जिसका बराह रास्त हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. वो उसके ऊपर हमने एक प्रेजेंटेशन भी है कि हम उसका ई गवर्नेंस के ऊपर लेकर जा रहे हैं, अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ई कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. उसका मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो क्या ऑफर कर रही है, चेंबर ऑफ कॉमर्स उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्टिव रोल प्ले कर सकता है. आज की हमारी प्रेजेंटेशन देखकर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आप हमें वो बता सकते हैं. चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है बिलाशुबा ये एक तरफ हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेक श्योर करता है, लेकिन साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक टूल है, एक जरिया है. फिर चेंबर जो है वो हुकूमत के और कारोबारी तबका के दरमियान एक ब्रिज है, एक पुल का काम करता है. और फिर तीसरी जानिब ये भी है कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसका बहुत वाइटल रोल है, वो एक इनोवेशन लेकर आता है, नए एंटरप्रेन्योर्स को जन्म देता है, बिजनेस इंकरेजमेंट लेकर आता है, इंडस्ट्री को बढ़ाता है. और जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पर देखिए देहाती आबादी बहुत है, रूरल इकोनॉमी, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को अब आईटी के साथ लिंक करना, जिद्दत के साथ लेकर आना, डेटा ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप लाना, ये चेंबर के काम है. चेंबर को जो करना चाहिए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ सिंक्रोनाइज करना, फीडबैक देना. दूसरे थिंग जो गवर्नमेंट के काम है कि ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी फिजा देना कि जहाँ पर काम करने वाला तबका जो है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको जस्टिफाइड स्पेस मिल सके फ्लरिश करने की, काम बढ़ाने की, जिसमें प्रॉफिट को हम मेक श्योर कर सकें. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हकीकतन इसके ऊपर कुछ किया जा सके. हम कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो उसको वन विंडो पर लेकर जाएं और हम उसके अंदर मिनिमल जो होते हैं उसकी प्रोसेसेस को मिनिमाइज किया जाए. जो आप 30 फॉर्म भरना, 35 इदारों के साथ रजिस्टर होना,
17 जगहों के महीने के टैक्स और पता नहीं कौन कौन सी चार्जेस भरना, ये सब वो कदगन है जिसका हमें अदराक है कि जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी इन मुश्किलात से गुजरती है। इसका सद्भाव करने के लिए अभी हम बहुत ज़्यादा कोशिश है काबिश वज़ीर आला साहिबा की कि हम 1 विंडो ऑपरेशन फॉर अ न्यू बिजनेस, जिसको जो बहुत इजी से जो रजिस्टर हो सके, जिसको इन दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, जिसको इस खजल खवारी से ना गुजरना पड़े, और जिसको महीने के 17, 15, 16 लोग जो आते हैं। फिर उसमें बहुत से ऐसा भी होता है, अगर मैं खुल के बात करूं, कि जितने भी आपके पास इदारे आते हैं उनको आप अंडर हैंड में बहुत कुछ दे रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा एक चैम्बर के प्रेसिडेंट से उनसे मिलने आई, उनसे मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 27 या 28 महकमे आते हैं जो मुझसे पूछते हैं, और जिन्होंने मुझसे कोई चार्जेस लेने होते हैं, फ़ी लेना होती हैं, टैक्स लेने होते हैं। और उन्होंने बोला कि मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है, ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, और वो 27 और 28 लिफाफे बनाकर रखता है। वो जो भी आता है उसको एक लिफाफा पकड़ा देता है, और मैंने इस मैनेजमेंट के लिए एक बंदा रखा हुआ है। तो ये बातें मुझे याद हैं आज तक। लेकिन अब हम जैसे गवर्नमेंट जो है हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है, वो बिल्कुल इन चीज़ों का हमें पूरी तरह से अदराक भी है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको टर्न अराउंड करने के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आए जा रहे हैं जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, इकोनॉमिक जोन डेवलप किए जाएं, इन चीज़ों को आसान बनाया जाए, और एक ट्रांसपेरेंट और फेयर जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस इन्वायरमेंट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जाए हमारे चेंबर्स के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और उसको आईटी के साथ जोड़ा जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज दौर आ गया, इन चीज़ों के साथ लिंक किया जाए। दूसरी जानिब जहाँ पर ये मकासद हैं और हमें लगता है कि चेंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका गवर्नमेंट के साथ मुसलसल रब्ता होना चाहिए। एक हमारी सिर्फ आज हमने इसका आगाज़ किया है और हम इसको जारी रखना चाहेंगे हमारे एंड से। मैं आपको इनवाइट भी करती हूँ कि आपको जब कभी भी हमारे साथ कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स को कोई इश्यूज हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, आपके लिए हमारा दफ्तर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट का दफ्तर हाजिर है 24/7। आपको मैं अपना ज़ाती नंबर भी देकर जाऊंगी, आप मुझे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई शिकायत हों, आपके कोई मसाइल हों, आपको कोई हुकूमत के हवाले से कोई आपने हमारे साथ फीडबैक शेयर करना हो, या हमने कोई चीज़ें लाकर प्रोसेस में डालनी हो, तो हम एक तो आज के नशिश का एक मकसद है कि हमारा एक मुसलसल रब्ता बने आपस में, और हमारे दरमियान एक रिजेंटमेंट ना हो, एक नाराज़गी ना हो, दूरी ना हो। ऐसा नहीं कि आप खड़े यहाँ पर सोचते रहें कि हुकूमत की तो कभी भी पॉलिसिक्स फेयर नहीं होती, बिजनेसमैन के हक में नहीं होती, जाएंगे तो हमें तंग ही किया जाएगा, बात नहीं सुनी जाएगी, कोई सुनवाई की जगह नहीं है। ये सारी शिकायतें होती हैं बिजनेस कम्युनिटी को। आपसे मैं फर्दन मिलूँ तो आप ये सारी बातें करेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं फ्लोर पे इसलिए करना चाहती हूँ कि अच्छी बात है हम अपने मसाइल को खुल के सामने लेकर आएँ, ताकि फिर हम उनका हल ढूंढें। और मसाइल का हल तभी निकाल सकते हैं जब हम चीज़ें सामने लेकर आएंगे। अगर हम उनको दबाते रहेंगे तो हल नहीं निकल सकेगा। हम आपके लिए ये दरवाज़ा खोलते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, हम पहल करते हैं। बतौर हुकूमत हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहल करें, और ये आपको हुकूमत की तरफ से मैं आपके बिहाफ पर, वज़ीर आला के बिहाफ पर, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला को जो है बहुत खुले दिल से वेलकम भी कहती हूँ और एक मुस्तकिल राब्ते के लिए दावत देती हूँ। और दूसरी जानिब हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो आज हम एजेंडा आपके पास लेकर आए, एक तरफ बिजनेस कम्युनिटी की जो हमें तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, प्रॉफिट यकीनी बनाना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यकीनी बनाना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना की तरफ जाना है, डेटा ड्रिवन बनाना है। दूसरी जानिब हमारे सारिफीन, हमारे कंज्यूमर भी इंतहाई हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं, वैल्यूबल हैं, और इस सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है, चाहे वो प्राइसिंग का हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, वो सारा कुछ जुड़ा है हमारे कंज्यूमर के साथ, सारिफ के साथ। हमारा सारिफ मुतमिन हो, उसको क्वालिटी मिले, उसको इंश्योरेंस मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले। और आप सब और मेरे समेत हम सब यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, डीसी साहब बैठे हुए हैं, डीजी साहब बैठे हुए हैं। एक तरफ ये सब हुकूमत की आपको नुमाइंदगी भी नज़र आ रही है, मेरे साथ मेरे भाई एक MP साहब बैठे हुए लोकल यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ हम सब सारिफ भी हैं, आप भी हैं। हम एक तरफ कुछ बेच रहे हैं तो एक तरफ 10 चीज़ें खरीद भी रहे हैं। तो वो जो सारिफीन के हकूक़ है, अब आप जब उस तरफ जाकर सोचें कि जब आप बायर हैं तो आपको उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कोई चीज़ है तो उसकी अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं,
آپ کو کوئی جو گڈز اینڈ سروسز دی جا رہی ہیں اس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی اگر خراب چیز مل گئی ہے, آپ کو ڈیفیکٹڈ چیز مل گئی ہے آپ کو, یا اس کی تول میں کمی آ گئی ہے, اوپر 1 لیٹر لکھا ہوا ہے, آپ نے بوتل کا ڈھکن کھولا جو سیلڈ ہے لیکن اس میں سے 3 کوارٹر نکلا ہے, آپ واپس جا کر کہاں بات کر سکتے ہیں؟ آپ کی سنوائی کہاں پہ ہو؟ آپ کا ریڈریسل کیا ہوگا؟ آپ کا رائٹ آف انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ جو آپ لے رہے ہیں, آپ کا رائٹ ٹو چوز دیٹ پروڈکٹ جو آپ لے رہے ہیں, آپ کا رائٹ ٹو ریڈریسل ان کیس آف آپ کی جو شکایت ہے وہ کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ ایز بزنس کمیونٹی اپنے صارفین کو دے رہے ہوں آلریڈی. آپ کی پیکیجنگ اس طرح سے ہو, اسٹینڈرڈائز پیکیجنگ ہو جس کے اوپر انفارمیشن ہو, کیا انفارمیشن ہے, اس کی قیمت کیا ہے, وہ آپ کا اور آپ لائسنسڈ کام کر رہے ہیں, آپ رجسٹرڈ ہے حکومت کے ادارے کے ساتھ, اور آپ ایک لیگل بزنس کر رہے ہیں. پھر آپ کی اس کے اندر کوانٹٹی کتنی ہے, آپ کی اس کی کوالٹی کیا ہے, آپ کے انگریڈینٹس کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ہونا. پھر بہت سارے جیسے ہوم اپلائنسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ان کی وارنٹی ہے اگر تو وہ کیا ہے, کتنی دیر کی ہے اس کی, اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو آپ صارف کو تحفظ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ون ٹائم وہ آپ کا بائر بنا, وہ آپ سے خرید کے چلا گیا, کمپلین کی صورت میں واپس آئے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے. کیا کوئی بل بک ہے, کیا پکے بل دیے جا رہے ہیں کہ نہیں دیے جا رہے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں. کنزیومر پروٹیکشن جو ہے وہ کنزیومر رائٹ کا کیسے تحفظ کر سکتی ہے. اور اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ ایک طرف شاید اس کو بزنس کمیونٹی ایسے بھی لے سکتی ہے کہ شاید یہ ہمارے اوپر ایک اور ایڈیشنل کوئی دیکھنے والی چیز آ گئی, ایک اور آنکھ آ گئی. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم آپ کو انگیج کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم دو طرفہ پارٹنرشپ کے اندر اس کو کریں. چیمبر ہمارا پارٹنر ہے حکومت کا, چیمبر ہمارا الائے ہے, چیمبر ہمارا اپوزیشن نہیں ہے, چیمبر از پارٹ آف اس. اور ہم اس انگیجمنٹ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک طرف جہاں پر مینوفیکچررز ہیں تو دوسری طرف کنزیومر بھی ہیں, تو جو کنزیومر رائٹس ہیں ان کی کیسے آپ نے حفاظت کرنی ہے اپنے تئیں. پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کے اندر جو ریڈریسل ہے کا میکینزم ہے, جیسے ہم ای کورٹس پہ اس کو لے کر جا رہے ہیں, ابھی ڈی جی صاحب آپ سے ذکر کریں گے, تو اس کے اندر ہم آپ کے توسط سے آپ کا بھی اس میں رکھیں حصہ, آپ کی نمائندگی رکھیں, تاکہ جو شکایات آتی ہیں انڈسٹری کی طرف سے کے بارے میں, صارفین کی طرف سے, اس کا ریڈریسل بھی آپ کے ذریعے ہو. سب سے پہلے آپ ہی اپنی انڈسٹری سے بات کریں کہ جی آپ یہ شکایت ہے, چیمبر بات کریں کہ جی یہ شکایت آ رہی ہے فلاں پرٹیکولر انڈسٹری کی, اس کا سدے بات کیا جائے, اس کو آپ ریڈریس کریں. اور اس کے بعد اگر جو نہ کہ ہم اس کو فوراً لے جائیں کسی افینس کے اندر, کسی قانونی کارروائی کے اندر, تو اس سے پہلے ایک ہمارے پاس آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ ہو. تو ہم یہ فیسیلیٹیشن دینا چاہتے ہیں اپنے کاروباری طبقے کو, اور یہ اعتماد ہم کی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یہ اعتماد کی فضا بحال ہو دونوں طرف. آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس یہ کار خیر بھی ہے کہ ہم اپنے صارفین کے رائٹس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے اندر شامل ہوں, نہ کہ آپ اس کو ایک باہر سے آؤٹ سائڈر بن کر دیکھیں یا آپ حکومت کی جانب سے ایک اور قدغن دیکھیں اس کو. ہمارا بنیادی طور پہ آج یہاں پر آنے کا, آپ سے گفتگو کرنے کا, نشست کرنے کے یہ 2-3 مقاصد ہیں جس کی وجہ سے ہم چیمبر میں آئے. اور اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہمارے ضلعی انتظامیہ کی. ہمارے کمشنر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں, جس طرح سے ضلع گوجرانوالہ کے اندر بہت اچھے جو کام کر رہے ہیں, جو بہت سارے ترقیاتی منصوبے ہیں گورنمنٹ کے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے, اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 1.5 سال کے اندر کوئی 150 منصوبے جو ترقیاتی شروع کیے گئے. یہاں پہ آپ کو اوور ہیڈ برج بھی نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو ستھرا پنجاب بھی نظر آئے گا, یہاں پہ اب آپ کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی نظر آئے گی. نو ڈاؤٹ کہ کمیونٹی آپ کی بزنس کمیونٹی کے کچھ اس پہ تحفظات بھی ہوں گے, لیکن اس ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا آرام جو عوام کے اندر جو اس کی پذیرائی وہ بھی آپ کے سامنے, اپنی گھر اپنا چھت جیسا پروگرام بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر یہاں پہ آپ کو اور اپنی الیکٹرک بسز بھی اب آپ کو نظر آتی ہوں گی. پھر آپ کو یہاں پر جو نئی تعمیرات ہوئیں, چاہے سڑکوں کے حوالے سے ہوئیں, جس طرح سے بازاروں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کی گئیں, جس طرح سے آپ کی یہ اسموک کے حوالے سے جو میٹیگیشن اویئرنیس پروگرامز کیے جا رہے ہیں, جو تدابیر کیے جا رہی ہیں, جو اس طرح کی بہت ساری آپ گورنمنٹ کی انٹرونشنز دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے اسٹوڈنٹ اسکالرشپس ہو گئے, اسٹوڈنٹ لیپ ٹاپ اسکیمز ہو گئی, پنک اسکوٹیز دیکھی ہم نے بچیوں کے لیے, پنک گیمز ہم نے دیکھی, ورچوئل پولیس اسٹیشنز دیکھے ہم نے, موبائل کلینکس دیکھے, فیلڈ ہاسپٹلس دیکھے. ہم نے ابھی بدترین سیلاب آیا ہمارے ملک میں, جو کہ گزشتہ 1955 سے لے کے اب تک کا ہم نے ڈیٹا دیکھا تو وہ یہ سب سے بڑا سیلاب تھا
जो 3 हमारे दरिया इकट्ठे उबल आए, सतलुज भी, रावी भी और चनाब भी, और 27 अजला इससे मुतासिर हुए। हमारी 23 लाख एकड़ क्रॉप लैंड इससे मुतासिर हुई। इसके अंदर 5 मिलियन लोगों को हिट किया इसने। जहाँ पे एक तरफ इतना बड़ा सैलाब था, उस तरफ आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा, जिसमें 2.5 मिलियन लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 21 लाख मवेशियों को रेस्क्यू किया गया, जहाँ पे क्लिनिक ऑन बोट्स बना के तबई जो ज़रूरियात थी और जो तबई सहूलियात थी वो फराहम की गई। और यहाँ पे 250 लोगों को इस सैलाब के दौरान स्नेक बाइटिंग हुई। लेकिन ये अपनी मुनफरिद बात इतनी है कि एक भी शख्स की अल्हम्दुलिल्लाह स्नेक बाइट की वजह से डेथ नहीं हुई, क्योंकि स्नेक बाइट की मेडिसिन, स्नेक बाइट की फौरी जो थी तबई सहूलत, वो क्लिनिक ऑन बोट्स के ऊपर भी मुयसर लाई गई और सैलाब के तमाम इलाकों में बर वक्त पहुंचाई गई। और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम था स्नेक बाइट के अंदर, वो आई थिंक 4 to 5 मिनट्स था हेल्थ डिपार्टमेंट का। इस तरह की बहुत सारी हमने चीज़ें देखी, आप देखते भी रहेंगे, आइंदा भी देखते रहेंगे। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। हम एक डायरेक्शन होती है, एक सिमत होती है जिसकी तरफ आप चलते हैं। क्या वो सिमत दुरुस्त है? क्या वो सिमत अपने लोगों को, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, सहूलत देने के लिए, उनको एक अच्छा तरक्की याफ्ता पंजाब देने के लिए क्या सिमत दुरुस्त है कि नहीं? तो हम उस सिमत पर हैं, उस ढकर पर हैं। अभी हमें बहुत सारे और काम अंजाम देने हैं। ये आगाज़ है, ये शुरुआत है, और इसके आगे आगे आपके लिए शायद देखेंगे 1 साल के बाद सूरत हाल और है, 2 साल के बाद और होगी, 3 साल के बाद और होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़र्क खुद महसूस करेंगे हर आते वक्त के साथ। मेरे भाई हैं, प्रेसिडेंट हैं। आखिरी बात करूँगी, इन्होंने एक सवाल किया था मुझसे डायरेक्टली अभी प्रेजेंटेशन के दौरान। इन्होंने कहा कि नीचे तक चीज़ें नहीं पहुँच रही, असरात नहीं आ रहे चीज़ों के। तो मैंने इनसे बोला कि आप कोई मिसाल से मुझे कोई निशानदेही करें तो मेरे से जवाब देना आसान होगा शायद। तो उन्होंने कहा कि सब्जी फ्रूट मंडी के अंदर रेट जो कीमतें होती है वो तो मंडी की नहीं दुरुस्त हुई। तो इन्होंने मुझसे सवाल तो कान में किया था, लेकिन जवाब मैं पूरा ओपनली देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, जहाँ पे खराबियाँ होती हैं, उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए अगर उनको टर्न अराउंड करना है। और अगर उनके ऊपर मिट्टी पे मिट्टी डालनी है, मक्खी पे मक्खी मारनी है, तह पे तह लगानी है, तो फिर वो एक और रवैया हो सकता है। हम जितनी भी गिरां फरोशी के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, इन्होंने जिक्र किया कि हम सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा हम आपका काम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे लोग कहते हैं कि जी आप छोटे इलाकों में जाती हैं, सब्ज़ी फरोश को आप जाकर डांटती हैं, उसको सील करती हैं, उसको बंद करती हैं, आप बड़ी दुकानों पर नहीं जाती, अमीरों के इलाके में नहीं जाती, बड़े स्टोर्स पे नहीं जाती। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का जब मुझे उन्होंने अपॉइंट किया प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उन्होंने मुझे अपना विजन बहुत क्लियरली बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मतवस्त तबका, जो हमारा कम आमदन वाला तबका जो है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी यकीनी लाजमी बनानी है। मुझे इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर, जो अशिया खुर्दनोश के अंदर बुनियादी 8-10 चीज़ों को फोकस करना है, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, चंद सब्जियाँ, चंद दालें, मुर्गी का गोश्त, दूध, या इस तरह की आटा, घी, चीनी, ये वो चीज़ें हैं जिसको फोकस करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कम आमदन वाले लोगों को हर सूरत चाहिए। रोटी हर किसी, एक जो अमीर शख्स होता है ना, उसको रोटी नहीं मिलता तो वो बिस्किट भी खा लेता है, वो फल भी खा लेता है, वो दूध और फ्रूट खाकर भी सेहत का ख्याल कर लेता है। लेकिन एक मतवस्त तबका, दिहाड़ीदार, मजदूर, रेडीबान, नौकरी पेशा, कम आमदन वाले, जिनकी छोटे कारोबार हैं, दुकानदारी है, लाख रुपए तक भी आमदनी है, पूरा घर चलाना है, अगर आप उसका भी सोचें तो उसके लिए उसकी सबसे बुनियादी ज़रूरत 2 वक्त की रोटी है। उसने तो हर रोज़ रोटी खानी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र उन्होंने मुझे जो हिदायत की कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखना कि मतवस्त तबके के लिए हमें सबसे पहले कुछ करना है। तो जब हम इन इलाकों में हम जाते हैं, हमारा इदारा जाता है, जब हम रेट्स करते हैं जहाँ पे कम आमदन वाले दुकानदार बैठे होते हैं, तो भैया वहाँ पे खरीदार भी तो कम आमदन वाले होते हैं। उस दुकानदार से जाके सब्जी फल मैंने नहीं खरीदना होता, उस इलाके के लोगों ने खरीदना होता है। उससे 200-250 घराना जो सब्जी खरीदने आता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितना है, ये भी तो जानिए। वो अगर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप एक गरीब सब्जी फरोश की दुकान बंद करती हैं, आप जुल्म करती हैं, तो मैंने बोला कि भैया वो जो 200-250 लोगों की रोज रोटी बंद करता है, क्या वो जुल्म नहीं कर रहा? एक मैं ऐसे इलाके की बात कर रही हूँ जहाँ पे भाई अगर गोभी 80 रुपए किलो तो लोग 2 किलो गोभी पकाते हैं, वही गोभी आप 160 रुपए किलो कर दें तो लोग 1 किलो गोभी लेकर जाते हैं।
मैं वो उनकी बात करती हूँ। मैं वहाँ पर जाकर अगर कोई ग्राम फरोशी करता है और 200 वाली चीज़ 400 रुपये में बेचता है, तो मुझे बताया मैं उसको रोकूँ नहीं तो क्या करूँ। हम एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे सूबे में, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 45% आबादी हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी ऐसी तबका है जो कम आमदन वाला और मतवस्त तबका है। हमें उसकी, हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, वजीर आला की ये प्रायोरिटी है कि उनकी रोटी को, 2 वक्त की रोटी को मेक श्योर करना है, उनको सस्ती सब्जी लाकर देना है। हमने ये सारी चीज़ें देनी है। हम वो नहीं हैं जो इन चीज़ों से इनकार करें या हम ये कहें कि आज रोटी महंगी होगी तो 2 नहीं आप 1 खा लें, आज टमाटर महंगे हो गए तो आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा विजन ये है कि टमाटर भी सस्ता करके दो, सप्लाई बढ़ाओ, उसको कहीं से लेकर आओ, कहीं तो मौजूद होगा, कोई सब्स्टिट्यूट दो, कोई ऑल्टरनेट दो। और अगर कोई ऐसी परेशानी आई है वक्ती तौर पर तो उसकी वजह क्या है, इसको तलाश करो, उसको अबूर कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका हल ढूंढो। मुझे वजीर आला ने हमेशा ये कहा कि मुझे मसाइल नहीं, उनका हल तलाश कर दो, मुझे एक्शन नहीं, सिर्फ मुझे साथ में रिजल्ट ला कर दो। तो हमारी लीडरशिप जो है, हमारी वजीर आला जो है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, और वो अपने लोगों के साथ, अपनी आवाम के साथ ये सब चीज़ें करना चाहती हैं। और जो मंडियों के अंदर हम ये कर रहे हैं, हम पूरी डिजिटाइज मंडियों की तरफ जा रहे हैं, हम डेटा ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब हम वो वाला निज़ाम भी मुतारिफ बहुत जल्द कराएंगे जिसका हम काम मुकम्मल कर चुके हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ईरान से, अफगानिस्तान से, डीजी खान से, दूसरे सूबों से जब सब्जी पंजाब के अंदर आए तो हम उनके ट्रक की ट्रैकिंग सिस्टम हमने मुतारिफ कराया। हम ट्रक्स ट्रैक करना शुरू किया। हमने 1 हफ्ता पहले से हमारा ये सिस्टम डेवलप हुआ और अब हमने इसको टेस्ट एंड ट्रायल पे लगाया हुआ है, जिसके अंदर हमने हमारा जो सेफ सिटी प्रोग्राम है, जो कि बहुत से इस्लाम में फैल चुका है, सेफ सिटी के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है। सेफ सिटी हमें उसके वो पूरे देता है कि कहाँ कहाँ से हमारा ट्रक गुजरा है, और हम उसकी पूरी देख रहे होते हैं। जब मंडी के अंदर वो जा रहा होता है तो हम उसकी नेम प्लेट, नंबर प्लेट जो होती है, उसकी स्नैपशॉट लेके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें ताकि हम गिन सकें हमारी कौन सी मंडी में कितने ट्रक गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ट्रक तो 40 आए टमाटर के, ऑक्शन 20 की हो और 20 बार बिक जाए। तो इसका सदेबाप कैसे किया जाए ताकि हमारी सप्लाई जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो, हमारी डिमांड मीट हो। और उसके बाद अगला कदम हम जो करेंगे वो होगा ऑक्शन की ट्रांसपेरेंसी। हमें मालूम है कि हमारे ऑक्शन के अंदर ये मसाइल हैं कि हमारे आलू की, प्याज की, टमाटर की 30 ऑक्शन होती है और फिर एक रेट निकलती है जो जिसको कहते हैं एवरेज प्राइस, विच शुडंट बी लाइक दिस। हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं। हम अपनी डिजिटाइज ऑक्शन भी लेकर आएंगे, हम मंडियों के अंदर वे ब्रिज भी लेकर आ रहे हैं, हम मंडियों की ओवरऑल डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम बॉडी कैंप्स लेकर आ रहे हैं मंडी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए। हम एक पूरी रिवोल्यूशनरी प्लान के साथ मंडियों का काम का आगाज कर चुके हैं, हम अपने SOPs डेवलप कर चुके हैं। हम पंजाब के अंदर जो हमारी 20 साल से, 17 साल से, 23 साल से मंडियां अबेंडन पड़ी हुई थी, जो सरकारी मंडियां बन चुकी थी लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो रही थी। 5 मंडियों की डेवलपमेंट हमने सिर्फ गुज़श्ता 1 साल में शुरू कराई। शेखुपुरा में शुरू कराई, मियाँ चन्नू में शुरू कराई, हमने साहिवाल में शुरू कराई, पाकपतन में शुरू कराई, मंडी भावदिन में नई मंडी जो है सरकारी शुरू कराई। और इन मंडियों के शुरू कराने से और इनके आगाज से और इनकी डेवलपमेंट से फ़ायदा ये होगा कि हमारी सप्लाई बेहतर होगी, हमारे पास कारोबार की फरावानी आएगी, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बनेगी और ये सप्लाई को भी बेहतर करेगी। मेरे पास इससे भी मज़ीद शायद मैं गुफ्तगू आपके साथ बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ बातें हम अगली नशिस्त के लिए रखें और हम जो चेंबर है उसके साथ ये राब्ता अपना मुसलसल रखें और दोबारा भी हम भी आपको मदऊ करें। आप, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन आप हमें दोबारा भी जब कहेंगे हम आपके पास हाजिर होंगे और बाकी बातें फिर इंशाल्लाह कोई आपका सवाल होगा या हम दोबारा मिलेंगे तो करेंगे। विद दिस आई थैंक ईच वन ऑफ यू। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और एक बार फिर ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं गुजरांवाला में अपने शहर में अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इसको तो मैं अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुले दिल से कह सकती हूँ, यहाँ आपके साथ बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. It gives me immense pleasure to know that you have spoken so open-heartedly. Madam is one of those people आप सब जानते हैं कि वो criticism भी accept करती है, and then she works towards that vision that she has in her heart. Madam is a progressive feminist, being a female. It gives me immense pleasure that you are a progressive feminist, and whatever you have said, it actually broadens our horizon and our hearts that you are an anti-Christian. Thank you, Madam.
अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे डायरेक्टर जनरल साहब लेफ्टिनेंट इमरान कुरैशी साहब से कि कल एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है इस अवेयरनेस सेशन के हवाले से, और सर प्लीज़। Thank you very much. Madam, thank you very much for coming here. And Gujranwala and Chamber of Commerce मौजूद हैं, हमारे अली साहब मौजूद हैं, और तमाम जो ऑनरेबल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेसिकली हम पूरे पंजाब के अंदर डिफरेंट सेशंस कर रहे हैं, जिसको बहुत सारी डिटेल में मैडम ने बात करनी है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे हम दो डिफरेंट अजलाम में जा रहे हैं, और हम एक ही जगह पे कोशिश ये कर रहे हैं कि डिफरेंट जो लोग हैं उनको बुला लिया जाए, यानी अंजुमन ताजरान के लोग भी हों, उसमें वकला भी हों, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, और हम अवेयरनेस के साथ उनके साथ एक इंटरेक्टिव चीज़ करना चाह रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैडम ने बड़ी डिटेल के अंदर इसके ऊपर बात कर दी है, हम सब एक तरह से, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। 5 to 7 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, हम सब कंज्यूमर हैं, जैसे मैडम ने बताया, हम जहाँ पे एक वक्त में बिजनेस कर रहे हैं, उसके एट द सेम टाइम हम कंज्यूमर भी हैं, तो हमारे कुछ राइट हैं। बेसिकली जो राइट हैं ये 2005 का एक्ट है, कोई नया एक्ट नहीं है, बट हम इस एक्ट को कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सके। आई होप कि तमाम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें, और जो साइल है, जो सारिफ है, उसको ना ही डिफरेंट ऑफिस के चक्कर लगाना पड़े, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है, और उसको इंसाफ या उसकी जो भी परेशानी है वो मिनिमम तकलीफ के साथ हो सके। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़ जी, नेक्स्ट कीजिएगा जी। हमने यहाँ पे आने से पहले एक पूरे पंजाब में एक सर्वे करवाया था कि हमें हमारे कंज्यूमर जो हैं उनको इस बारे में पता भी है कि नहीं पता, हमारे जो राइट्स हैं। तो 41 डिस्ट्रिक्ट में हमने करवाया, डिफरेंट मार्केट्स विजिट की, तहसीलों को भी कवर किया, तकरीबन 10,000 लोगों को हमने इंटरव्यू किया, और 70% जो लोग हैं, 70% जो लोग हैं वो हम सब इनमें बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे कोई राइट्स भी हैं, हमारे सारिफ के कोई राइट्स हैं, और अगर राइट्स हैं तो हमने कहाँ जाना है। और जिन लोगों को पता था वो भी इतने लंबे प्रोसेस से बचने के लिए उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। ये हम आपके पास अगर आए हैं तो हम इसके साथ भी बेसिकली एक सर्वे कर आए हैं, जो कि हमारा इस वक्त भी ऑनगोइंग सर्वे है जी। नेक्स्ट कीजिएगा जी। जिस तरह मैंने बताया कि जी 70% कंज्यूमर को, सारिफ को पता ही नहीं कि उनके क्या राइट्स हैं, और उनको एज सच को अवेयरनेस भी नहीं है। तो हम मैडम SCCM के बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये खुद हमारे साथ हर ज़िले में जाने के लिए टाइम निकाल रही हैं, ताकि हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम टॉप लेवल से चीफ मिनिस्टर का जो पैगाम है वो हम सबको दे सकें। कंज्यूमर चाहते हैं कि जी हमारा अगर मसला है तो वो जल्दी हल हो सके, हमें लंबे लाइनों में, तारीखों में ना पड़ना पड़े। नेक्स्ट कीजिएगा जी। ये कुछ हमने टेस्टिमोनियल है, इसको जरा ऑन कीजिएगा। कुछ लोगों की आराय हैं जो कि हमने अपनी इस प्रेजेंटेशन में डाली हैं। स्टार्ट कीजिएगा जरा। मुझे मार्केट जाना पड़ता है और अशिया वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, तो ये सम टाइम बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि अगर कोई चीज़ ये हमें एक्सपायरी दे देते हैं, और कोई चीज़ नाकिस दे देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्मेल आ रही होती है या ख़राब होते हैं, तो इनको रिटर्न करने के लिए जाओ तो ये लोग बात नहीं सुनते। मैं अपने लिए कुछ बुक्स और स्टेशनरी परचेज़ करने के लिए शॉप पे गई हूँ और परचेज़ की है मैंने बुक्स और स्टेशनरी। जब मैंने शॉपकीपर से रसीद मांगी है तो उसने मुझे रसीद देने से मना कर दिया। मेरे ज़्यादा इंसिस्ट करने पे उसने हाथ से बना हुआ बिल मुझे बना के दे दिया, जिसके ऊपर ना कोई एड्रेस था, कुछ भी नहीं था, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। जब मैंने उससे कहा कि मुझे एक प्रिंटेड रसीद चाहिए जिसके ऊपर सब कुछ मेंशन हो, एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ना को गारंटी देती ना को कम से कम बिल तो होना चाहिए ना, जी बिल होना चाहिए कम से कम। कोई रसीद कोई बिल किसी को खड़ा को साबित होना चाहिए ना, ਤੁਹਾਡੇ को पक्का लग गया है ऐ कोई गलती नहीं है, तुम पक्का दे दो, जीत को भी ना दो, ऐ कोई बात ठीक नहीं, ऐ चीज़ां होनी चाहिए। पहले मैं होटल पे खाना खाने गया
उधर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने उनको बिल अदा किया और मैंने उनसे रसीद का मुतालबा किया, जो कि उन्होंने मुझे रसीद नहीं दी। हम कंज्यूमर का हक है कि उनसे रसीद मांगे, लेकिन वो रसीद बार बार देने से इनकार कर रहे थे। सर ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसे जो चीज़ लेने और वापस नहीं करते, इस करके साथ कोई है ना कोई मुंडा बना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕੇਸ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जहाँ पे पंजाब हुकूमत ने इतना काम किया है तो ये भी ऐसा काम करें ताकि हमें कचहरियों के मतलब वकीलों के पास चक्कर ना लगाने पड़े, ताकि कोई इस तरह का इदारा हो जो हमारी शिकायत का अदाला कर सके। तो पंजाब हुकूमत से मेरी अपील है, काइंडली इस पे गौर करें। हम कंज्यूमर का हक है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हैं। जो इस तरह के शरपसंद हैं, जो रसीदें नहीं देते, टैक्स के बगैर चल रहे हैं, काइंडली आप उनको पकड़ें और हम आपके मेरे नवाज से कि कोई ऐसा इदारा हो जहाँ हम कंप्लेन कर सके, रसीद ना मिले हमें कि आप लोगों को, और आप जो रसीद ना दे उनको फाइन हो। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये हमारे पास एक जगह मौजूद तो थी, बट हमें कोई ऐसा जो है वो डिपार्टमेंट या ऐसा कोई डायरेक्टरेट चाहिए जो कि सब चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सके। नेक्स्ट कीजिएगा जी, नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डील कर रहे होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है और वो डिफेक्टिव निकल आता है तो नॉर्मली हमारे दुकानदार उसको वापस नहीं करते। या कोई दिखाया आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है, जब आपके पास रिसीव होता है तो वो प्रोडक्ट वो नहीं होता। फिर हम अगर कोई पानी की बोतल ख़रीद रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, उसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये हमारा कंज्यूमर के तौर पर राइट है कि हमें पता हो उसमें क्या लिखा हुआ है, वो किस किस इंग्रेडिएंट्स के साथ है। फिर सर्विसेज हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन वो सर्विसेज हमें अगर फॉल्टी मिलती है तो हमारे पास ये एक्ट मौजूद है जिसके थ्रू हम इसको डील कर सकते हैं। इश्यूज रिसीव के ऊपर बात हो चुकी है। फिर प्राइस लिस्ट सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की नहीं, तमाम चीज़ें जो भी दुकानदार अगर बेच रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, एक्ट उसको बाउंड करता है कि वो तमाम चीज़ों के रेट लगाए। अब ये कंज्यूमर की मर्जी है, होता ये कि एक कंज्यूमर के लिए रेट डिफरेंट होता है और बाकी कंज्यूमर के रेट लोग जो है वो डिफरेंट करते हैं। अगर डिस्प्ले होगा, हमें पता होगा कि पानी की बोतल 50 रुपये से ऊपर लिखा है तो 50 रुपये की मिलनी चाहिए, लेकिन वो उसकी मर्जी है, वो 60 की बेचे, 30 की बेचे, सो ये उस कंज्यूमर का राइट है। नेक्स्ट कीजिएगा जी। अच्छा, इसमें बेसिकली दो किस्म के हमारे पास सिस्टम मौजूद हैं। ऑलरेडी आपके नॉलेज में भी होगा, कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हमने जो कंज्यूमर कोर्ट्स थी वो पहले 17 अजला के अंदर मौजूद थी। अब हमने उनकी जो पावर है वो 153 हमारी जो सब डिवीजन हैं उनके एडिशनल सेक्रेटरीज को दे दी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक गुजरावाला के अंदर वजीराबाद वाले बंदे ने अगर कंप्लेंट करनी थी तो उसको पहले गुजरावाला आना पड़ता था, तो अब वो अपनी कंप्लेंट जो है वो वजीराबाद के अंदर ही कर सकता है और उसको वहाँ पर ही उसको सुना जाएगा और उसका फैसला किया जाएगा। और जो दूसरा चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर जो है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो 4 सेक्शंस को डील करते हैं। ये बेसिकली समरी डिस्पोजल है और स्पीडी डिस्पोजल की हम इसके ऊपर बात करते हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा जी, नेक्स्ट ये नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट ये सेक्शन 11 जो है ना, ये मैंने थोड़ी सी इस पर बात की थी और मैडम SSCM ने इस पर डे में बात की थी कि डिस्क्लोजर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें पता हो उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ हो, उसमें किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। पता तो हो कि हम जो चीज़ ले रहे हैं, स्पेशली फूड आइटम जो ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी हमें पता हो, ऐसा ना हो कि हम एक्सपायर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट कीजिएगा जी। देन सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइडर से मुराद ये होती है कि हमने अगर कोई भी सर्विस ली है, यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, मतलब हम किसी भी टेलर्स के पास ये लोग ख़वातीन जाती हैं तो वो पता लगता है कि उन्होंने जो सूट सिया है वो सूट जो है वो एक तो टाइम पे नहीं दिया, नंबर 2 ये कि वो नाप तो उसमें कमी कर दी है। अब क्या करें, मतलब वो आपका सूट भी ख़राब हो गया, पैसे भी ज़ाया हो गए और वो आगे से ये एक्ट हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम
اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. پہلے جو کمپلینٹ کا میکینزم تھا وہ بڑا لینتھی تھا کہ جی آپ نے اے سی آفس یا ڈی سی آفس جانا ہے یا کنزیومر کورٹ میں جانا ہے, تو اس کے لیے کسی کے پاس بھی اتنے ٹائم انرجی اور منی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ٹائم نکالے اور وہ جائے. تو ہم سر ایک اپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں تاکہ وہ کنزیومر جو ہے اس اپلیکیشن کے اندر اس کو جو زبان بھی آتی ہے, اردو میں بولے, پنجابی میں بولے, انگریزی میں لکھ دے, اور اس کو پھر ہم کنیکٹ بھی تھرو دیٹ اپلیکیشن کریں گے. یعنی فار ایگزامپل ایک بندے نے لاہور سے کوئی خریداری کی ہے, کمپلینٹ تو لاہور کی بنتی ہے لیکن رہنے والا گجرانوالہ کہ کیا اس کے لیے وہ ڈی سی آفس لاہور جائے؟ نہیں, وہ یہاں سے ہی کمپلینٹ لانچ کرے گا, ہمارے ڈیش بورڈ پہ آ جائے گی, اور ہم کنسرن ڈپٹی کمشنر سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو 4-5 دن کے اندر ریزالو کریں. سب سے پہلے تو جو میڈم نے ذکر کیا کہ جو ہمارے جتنے بھی انجمن تاجران ہیں, کیونکہ ہر علاقے کی اپنی ایسوسیشن بھی بنی ہوتی ہیں, ان کے حوالے کر دیں گے کہ آپ اس معاملے کو ریزالو کریں. وہ نہیں کر پائیں گے تو ہم ان کو, کنزیومر کو ہماری خواہش ہے کہ اس کو ہم نہ بلائیں اپنے پاس, ہم اس کو آن لائن لیں. آج کل ہر کوئی جو ہے وہ زوم کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو کالس کرتا ہے, اور سارے سسٹم کو ہم ریکارڈ کریں, اور اگر ہمیں بلانا پڑتا ہے رسپونڈنٹ کو ضرور ہم بلائیں, اور اگر اس کا مسئلہ 3-4 دن میں اے ڈی آر کے تھرو جس طرح آپس میں مل کے ریزالو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر اس کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اب ہم نے یہ پاور جو پہلے کنسرن ڈپٹی کمشنر کے پاس تھی, وہ پاور ہم نے ڈائلیوٹ کر کے اب تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی دے رہے ہیں. یہ بھی ہم نے پارلیمنٹ سے ہم نے کیبنٹ سے اپروول لے لی ہے. نیکسٹ کیجیے گا جی, نیکسٹ کیجیے گا. سو ایک جس طرح یہ ریسیپٹ ہے, ریسیپٹ کے اوپر بات کی. دیکھیں ہم رسید سے ہماری مراد یہ, اگر میں نے کوئی چیز خریدی ہے, ہم ایف بی آر کی رسید آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہ کل کو میں واپس کرنے جاؤں تو کم از کم دکاندار یہ تو مانے نا کہ مجھ سے لی بھی ہے کہ نہیں لی, اس تاریخ کو لی ہے کہ نہیں لی. اگر ہم کوئی چیز رسید ہمیں ملتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کے وہ کہہ گے کہ ہم سے پروڈکٹ آپ نے لیے ہی نہیں ہے. اچھا, پھر ہم رسید بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی کہ کون سی چیز کتنے کی دی. بعض میں اگر آپ رسید نہ ہو تو وہ جو واپس کرنے جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ تو میں نے اتنے کی بیچی نہیں تھی. سو ویسے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی لکھت پڑھے جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس سے رسید مانگے, جو رسید نہیں دیتا تو اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا. سو یہ ہمارے فیوچر انیشیٹو میں ہمیں تھوڑا بہت بتا دیا کہ ہم ایک ڈیش بورڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری موبائل ایپ آلموسٹ ڈیولپ ہو گئی ہے, جو کہ ہم بیسیکلی جو یہاں پر موجود ہے اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی آراء ہے جو کہ ہم اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم بہتر بنا سکیں. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرس کی انوالومنٹ کے بغیر چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. تو آپ تمام لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور پریزنٹ گورنمنٹ ہے, میڈم چیف منسٹر, ان کی ہدایت ہے کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ضرور انٹریکٹ کریں. اور یہ اس سے پہلے ہم لاہور چیمبر بھی جا چکے ہیں, سیالکوٹ جا چکے ہیں, ہم نے اکیڈیمیا میں بھی گئے ہیں. وی آر موونگ ٹورڈز ایوری چیمبر کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہم لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے بلا لیں, اور ان سے ہم ان کی طرف سے کوئی ہمیں انپٹ ملتی ہے تو ہم اس کو ضرور شامل کریں. نیکسٹ کیجیے گا جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صارف دوست ویژن کے مطابق حقوق کے تحفظ کی فراہمی کے لیے پیکنگ پر اجزائے ترکیبی اور اشیاء کے معیار, تیاری کی تاریخ, استعمال کرنے کی آخری تاریخ, کاروباری جگہ پر واضح پرائس لسٹ آویزہ نہ کرنا اور رسید کی عدم موجودگی قانوناً جرم ہے. خلاف ورزی کی صورت میں 1000 تا 1 لاکھ روپے تک کے جرمانے اور فوری قانونی کارروائی. کسی بھی شکایت کی صورت میں اتھارٹی اے سی ڈی سی آفس میں درخواست جمع کروائیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ضلع تحفظ صارف کونسل کے آفس میں بھی درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں, یا اپنی شکایات کے فوری ازالے کے لیے کنزیومر پر شکایت درج کریں. صارف بااختیار, حقوق کا تحفظ ہر بار. پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ, حکومت پنجاب. جی, یہ ہماری ایپ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل, جب جیسے ہمارا یہ اویئرنیس کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو لانچ کر دیں. نیکسٹ کیجیے گا جی. نیکسٹ کیجیے گا. یہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے رہے ہیں. میڈم سلمہ بٹ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی اور اپنی کنسلٹنٹس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. جی زبا. سر تھینک یو. میں گزارش کروں گی ایم پی ایس سٹی سر عمر فاروق ڈار چیئرمین واسا سے, وہ کچھ خطاب کرنا چاہتے ہیں سر کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی آنریبل سلمہ بٹ صاحبہ چیئرمین پرائزن کنٹرول پنجاب کا اور گجرانوالہ کی معزز انتظامیہ کا, سید نوید حیدر شراری صاحب کا, ڈپٹی کمشنر نوید احمد صاحب کا, اور ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں صدر محترم ہمارے علی ہمایوں بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان سارے دوستوں کو اکٹھا کیا
यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़िज़ ताजर भी बैठे हुए हैं और गुजरांवाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि वो फिर बात करते हैं। मैं सिर्फ अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के गुजरांवाला के लिए मैम साहबा जो एक इनकलाबी तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया है, सिर्फ 2 मिनट में मैं अपने मुअज़्ज़िज़ ताजरों से ये गुजारिश करूँगा कि ये बड़ी लंबी मैंने लिस्ट बनाई है। आप यकीन करें कि ये 1.5 साल में हमारी चीफ मिनिस्टर के ये वो कारनामे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने वाली हमारी इंतज़ामिया की टीम बैठी हुई है। सबसे पहले आप देखें चांदा किला जो पुल है, ट्रैफिक वहाँ पे आ रही है। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला है, अल्लाह के फजलो करम से बड़े भरपूर तरीके से वो तैयार हो रही है। बर्न सेंटर आज से पहले कभी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब बर्न सेंटर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है और उसमें सिर्फ अमले ने आना है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आप देखें 1 लाख नौकरियां GWMC का एक वो प्रोग्राम है जिसमें 1 लाख नौकरियां पूरे पंजाब में दी गई हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और ये सिर्फ 1.5 साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आगे हम आ जाएं तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गोंदलावाला अस्पताल है, उसी के साथ फ्री मेडिसिन है। ये वो चीज़ें ग्राउंड में हमें गुजरांवाला के शहरियों, मेरे मुअज़्ज़िज़ ताजरों, हमें ग्राउंड में नज़र आ रही हैं। उसके बाद हम आगे जाएं तो मेट्रो बस जो है फ्री प्रोजेक्ट है। आप ये देखें बड़ी बाइज्जत तौर से गरीब लोग हैं जो हमारे माशरे का, जिनके लिए मैं समझता हूँ चांद गाड़ियों में या बसों में उनके लिए बड़ा मुश्किल था आना जाना। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो बस दी है। रमज़ान पैकेज में आ जाएं तो अभी हमने चेक्स तकसीम किए हैं। उसके बाद वासा गुजरांवाला को 30 अरब रुपए का तरक्याती फंड जो है वो दिया ही नहीं है, वो मंजूर भी हो चुका है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुजरांवाला के लिए। वासा के इस मंसूबे से अगले 50 साल सीवरेज के मामला हल हो जाएंगे। आगे हम आ जाएं तो ग्वाला कॉलोनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी सर कमिश्नर साहब भी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आपसे ग्वाला कॉलोनी मुताबिक भी बताएंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर इस ADB में वो भी फंड आ चुके हैं। ग्वाला कॉलोनी गुजरांवाला की बनने जा रही है। आगे हम आ जाएं तो इंक्रोचमेंट जो है, आप ये देखें इंक्रोचमेंट और सरकारी जगह का कब्जा जिस तरह इंतजामिया ने छुड़वाया है, आज तक कोई छुड़वा नहीं सका था। कोई MNA MPA चेयरमैन साहब किसी भी इंक्रोचमेंट के काम में आधा % भी नहीं आया उन्होंने, और आम लोगों ने, हमारे गुजरांवाला के शहरियों ने भी इसे बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद अगली तरफ हम आए तो अपना घर अपनी छत है। अभी धी रानी प्रोग्राम में तकरीबन 2 वीक्स पहले जो है 150 से अबव जोड़ों की शादी हुई है और चीफ मिनिस्टर ने 2-2 लाख रुपया उन्हें सलामी भी दी है। तो मैं ये समझता हूँ वुमेन पुलिस स्टेशन इससे पहले नहीं था। गुजरांवाला के शहरियों, ये भी आपकी खिदमत में चीफ मिनिस्टर ने पेश किया। तो ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनकलाबी मंसूबे हैं। और एंड में मैं कहूँगा कि हमसे कामों में मुकाबला किया जाए। हमारे जो सियासी मुखालिफिन है, मैं समझता हूँ कि वो खिदमत करेंगे तो नाम भी बनेगा। हमारी चीफ मिनिस्टर जैसा हो तो हमारे सामने लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस वक्त दावत खिताब दूंगी कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सर नवीद अहमद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा, उमर फारूक डार साहब MPA साहब, मेरे छोटे भाई नवीद अहमद डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, अली हुमायूं भट्ट साहब प्रेसिडेंट चैम्बर गुजरांवाला, इमरान कुरैशी साहब, अंजुमन ताजरान के जो नुमाइंदे बैठे हैं, पीस कमेटी के जो नुमाइंदे बैठे हैं, चैम्बर के जो मेंबरान हैं, मैं और हम सब मिल के मैडम को खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा सेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैडम ने इतने कम्प्रीहेंसिव तरीके से
ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے آگے بات رہ نہیں جاتی. میں صرف 2-3 سینٹنس ہی بولوں گا. دیکھیں یہ اتنا اچھا جو لا ہے، یہ ایکٹ ہے کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اگر ہماری 24 کروڑ آبادی ہے تو یہ ایکٹ 24 کروڑ لوگوں کے لیے ہی ہے. جیسے میڈم نے کہا کہ کوئی ایک پروڈکٹ یا کوئی ایک آئٹم یا کوئی ایک چیز تیار کرتا ہے تو اس کو روزمرہ کے لیے اگر 20 چیزیں ریکوائر ہیں تو وہ کنزیومر ہے. تو اس لحاظ سے ہم سارے ہی لوگ جو ہیں 24 کروڑ کی جو آبادی ہے ہماری، ہم سارے ہی کنزیومرز ہیں. اور یہ ایکٹ جو ہے یہ ہم تمام لوگوں کو 24 کروڑ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے. تو میں میڈم اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ سیشن آپ کی موجودگی میں پہلا ہے یہاں، لیکن ہمارے آفیسز میں ہم روٹین کے ساتھ یہ سیشن کرتے رہے ہیں. تمام ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، ہم ان کی منتھلی یا 2 مہینے بعد ہم ایک میٹنگ اس کی کرتے رہے ہیں. اور جو اس میں فاروق صاحب ہیں آپ کے لیگل، وہ اس سلسلے میں انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ اب یہ اگر اس کو دوبارہ سے اس ایکٹ کو 25 کے تحت جو اس میں آپ سمجھتے تھے کہ ایسی چیزیں جو اس کو دوبارہ سے اپڈیٹ ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ہم پوری ہماری انتظامیہ کی کوشش ہوگی کہ ہم تمام جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان کے تحفظ کا ایکٹ ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ انشور کریں گے، یہاں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اور ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ ہے، اس سلسلے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے پورا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پورے طریقے سے امپلیمنٹ کروائیں گے. تھینک یو. میں میڈم کو 2 منٹ کے لیے انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. میڈم نے وومن انوائرمنٹ کے اوپر بات کی. میڈم الحمدللہ پہلے تو نہیں کہ گجرانوالہ میں یہ روایت ہے، اس ٹائم الحمدللہ 600 انٹرپرینیور وومن ہیں، ان کے لیے علیحدہ چیمبر بننے جا رہا ہے جو وومن چیمبر رہے گا. انشاءاللہ 2 مہینے تک آپ آئیں گی تو آپ کو تھینک یو. اب میڈم ہم ہاؤس سوال جواب کے لیے اوپن کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ کے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسے جانا تو نہیں چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ آگے میرے آگے پروگرام ہمارے اسکیڈول ہوئے ہیں. اگر آپ کوئی میں تقریباً 5 منٹ یہاں پر ہوں، تو اگر آپ کوئی سوال میرے حوالے سے کچھ پرٹیکولر کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی ہمارے پاس ہے تو درخواست، اس میں ہم لوگ نہیں 1 منٹ اس پہ صرف 1 منٹ اس پہ عمل اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے جو سلاٹر ہاؤس ہے ہمارا وہ ہم نے ایکسچینج کر کے سلاٹر ہاؤس کو چینج کریں، اس کا ادارہ چینج کریں. اب ہم جو نئے سلاٹر ہاؤس ہے نا اس کا ابھی جو ہمارا وہ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی وہ ہو گئی. اس کے بعد ہم نئے سلاٹر ہاؤس جو ہے نا وہ بنائیں گے، اس کے اندر آپ کا یہ ہوگا گجرانوالہ کا سلاٹر ہاؤس بھی شامل ہے. میڈم اور کمشنر صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ صرف 1 مہینے کا ٹائم دے، آپ کا سلاٹر ہاؤس کے سارے ضلع دور کر دیں گے. ایک تو میڈم
मैडम सलमा भट्ट जो मैं समझता हूँ कि हमारे गुजरांवाला की बेटी भी है, हमारी बहन भी है, और मेरे लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है कि जब आपने 2004 की बात की तो मैंने थोड़ा सा मेमोरी को बैक में लेके गया, तो आपके साथ हमारा एक कह लें कि सोशल सेक्टर में रूहानी तलक भी है थ्रू सरमद साहिब और बुशरा भट्ट साहब, अगर आपके वो सारी टीम जो मेंबर्स थी, तो हमने आपसे बहुत सीखा है। और आज यकीन जानिए जितना आपने डाटा कलेक्शन और सारी चीज़ें वर्बली बयान कर दी, सारा कहने के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जितनी चीज़ें आपने अवेयरनेस दी है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एक मैडम, मैं ये मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये बताना चाहूँगा कि गुजरांवाला की एक इनफरादियत है कि यहाँ की मैनेजमेंट ने और सिविल सोसाइटी ने मिलके पहली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो बिल्डिंग थी वो कम्प्लेक्स पूरे पंजाब में सबसे पहले गुजरांवाला में बनाया। तो मैं समझता हूँ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, क्योंकि फारूक साहब उस वक्त यहाँ पे रजिस्ट्रार थे और नबील अवान साहब DCO थे, तो इनकी ये बहुत बड़ी एक कह लें कि ये अहम इनकी इसमें काविश थी। तो अब कंज्यूमर काउंसिल को हम कमिश्नर साहब की और डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में चाहते हैं कि इसको ग्रास रूट में ज़रा लेके जाएं। अगर मैडम हम देखें कि जैसे DG साहब ने पहले फरमाया है कि हमने इसको डिवॉल्व कर दिया है तहसील सतह पर, ये तहसील सतह पर तो काफ़ी ज़्यादा देर पहले से भी AC साहिबान को पावर्स जो है वो डेलीगेट की जा चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें आपकी मौजूदगी में का फ़ायदा लेते हुए मैं चाहूँगा कि ये, क्योंकि AC साहब के पास मल्टीपल कह लें कि उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हम लोग इसको इसलिए ई पर लेकर आ रहे हैं कि वो ताकि ये जो लोगों के जाने वाला जो काम है वो ख़त्म कर दें, इसको ई कोर्ट्स में कन्वर्ट करें ताकि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली इसको फ़ायदा हासिल कर सकें, आपको कहीं जाना ना पड़े। और हम इसके ऊपर जूम लिंक भी दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको जो है आपका जो आपकी शिकायत का जो वो सुनवाई है ना, हियरिंग, वो जूम लिंक के जरिए की जाएगी, उसमें भी आपको कहीं आना जाना ना पड़े फिजिकली। और तीसरा, इसको हमने साथ जो AD लीगल लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं ताकि जो हमारे AC साहिबान के पास, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि 200 और काम होते हैं, हमें भी मालूम है, इसलिए हमने साथ AD लीगल भी लगाए कि जो जिसका सोलली ये काम होगा। और तीसरा ये कि जब उसकी हियरिंग होगी तो उसकी जो फैसला है वो भी आपको ई कोर्ट के जरिए मिलेगा, तो लिहाजा आपका खर्चा भी नहीं होगा, आपको चक्कर बार बार भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको डेडिकेटेड इसके ऊपर हम AD लीगल भी देंगे। जी चेयरमैन साहब, एक सेकंड। चेयरमैन साहब, आपकी इजाज़त से हमारे अमन कमेटी के मौजूद उलमा कराम बैठे हैं, अगर आप मेहरबानी करें तो एक एक मिनट की कोई बात कर लें ज़रा साहब से, ज़रा शादी तुसी भी ज़रा थैंक यू। आपके वाले से अभी ई चलान शुरू हो गया गुजरांवाला में, तो जो मोटर बाइक में जोड़ के हो रहा है, जो गार्डन वाले इंसान कर उनको मना किया जाए। साथ गुजरांवाला के एयरपोर्ट की जरूरत है, ड्राईपोर्ट की जरूरत है, बहुत बड़ा तीसरा शहर वाला, इसके लिए काम किया जाए। ई चलान शुरू हो गया ना मैडम, डबल चलान होता है। ई चलान है तो हिसाब ये भी कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत आपका वोट में खराब हो रहा है इससे ना, गरीब आदमी। ई चलान शुरू हो गया ना, तो वो भी कर रहा है कि ई चलान भी आ रहा है। अच्छा, एक ट्रैफिक वाले को कर रहे हो और एक भी हो रहा है, तो ओके ठीक है। और कोई चीज as a Christian community happening? बड़ी खुशी होती है आपके तासुरात जान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अल्लाह ताला आप लोगों का इसी तरह से एक वाक़ई ताल्लुक, राब्ता, कोऑपरेशन और एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। हमारे जो बैठे हुए जी मैम, मैं सबसे पहले CM पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई भी काम मैं समझता हूँ, मैं मेंबर पीस अमन कमेटी भी हूँ, अल्लाह तशरीफ का सदर भी हूँ गुजरांवाला से, और कोई भी काम ऐसा मुमकिन नहीं है जो टीम अच्छी के बगैर किया जा सके।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, और इस टाइम मौजूद नहीं है हमारे CPO याद स्लीप था, इतने परफेक्ट पर्सन है, इतना टाइम हो गया हमें, 3-3 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए, तो कोई ऐसा मसला नज़र ही नहीं आता जो इनकी नॉलेज में हो और वो हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अपनी टीम को और अपने मेम्बरान को कि इनकी मदद से हमारे अयाम मुहर्रम सारे प्रोग्राम इतने अच्छे हो रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं और तरक्की नज़र आ रही है और हर किस्म के हमारे जो भी मामला हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। बस गुजारिश ये करनी है, मज़ीद दुआओं की दरख्वास्त है और तमाम जो हाल वाले लोग बैठे हैं सिर्फ एक बावर ये कराना चाहते हैं कि जिस तरह आप मेहनत कर रही हैं ये सारे का सारा आपकी वालिदैन की दुआओं का समार है। आपके वालिदैन ने जिस तरह राह वाली में मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह इसी तरक्की वाले रास्ते में गामज़न करे। मैडम मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सुथरा पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बड़ा तंग हूँ, 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं और मेहरबानी करें, मैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैम आपने कंज्यूमर के हवाले से काफ़ी बातें की हैं, मेरा तल्लक है एजुकेशन सेक्टर से। एक स्टूडेंट हमारे पास पूरा साल पढ़ता है लेकिन एंड पे जाके रोल नंबर स्लिप को गुजरा बोर्ड पे जाके ले लेता है, हमारी पेमेंट या फीसें वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। इस हवाले से मैंने कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद है, मैंने कहा कि ये मसला उन तक पहुँचाया जाए ताकि बच्चों को जो रोल नंबर स्लिप है वो अदारे से ही मिले, बोर्ड से ना मिले। पढ़ते हमारे पास है और रोल नंबर स्लिप वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे मेरी बड़ी माजरत है, मेरे बड़े भाई भी हैं मोहतरम है, उन्होंने प्रोग्राम किए हैं और वो स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं।